spending more than 5 months in jail, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addressed his first mega public rally since being granted bail by the Supreme Court, conditional bail by the Supreme Court. And right away sends shockwaves through the political corridors, doing what he is best at, that is capitalizing on public sentiments. Armed with bail in the Delhi excise policy case, Aam Aadmi Party convener unexpectedly announced that he would resign after 2 days. He vowed that he will sit in the CM's chair till the time the Imandari ka certificate is given to him by the people of the national capital, by the voters. He has also demanded early elections in Delhi and called on to the centre to advance the elections to November from February when they were being originally scheduled. आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। So what is next for the AAP Sarkar? Because on Tuesday, which is the 17th of September, if Arvind Kejriwal sticks to his announcement, sources suggest that two times now, that the procedure that will be followed is that he will be meeting the Delhi Lieutenant Governor. He will be submitting his resignation. He will give him the name of his recommendation for his possible successor as CM. And as per procedure, since Delhi is a national union territory, being the national capital, the name then shall go to the president via the MHA for approval. And once the clearance is given, the new CM will take charge of office. Significantly, sources suggest that the Aam Aadmi Party convener will also then vacate his official residence, the Sheesh Mahal, when the new CM takes charge. CM Delhi, Kejriwal ji has announced that he would be resigning as Chief Minister from Delhi. Has really taken everybody by surprise, and I feel that whatever he has said, keep his word or not, and in case he resigns as a chief minister, obviously he will have to vacate his official house. So there should be no doubt that in case he is leaving the post of CM, the house would be given to the next coming chief minister. Well, not just that. Looking to capitalize further, sources suggest that the Aam Aadmi Party is also planning to organize a mega rally on the 22nd of this month. Where exactly and what exactly is the possible motive or reasoning, that is something that is not yet been ascertained. But party MLAs, councillors, all of them have been asked to garner support for the gathering, the location for which that is yet to be determined. The decision is also coming as a significant time when the Haryana elections will be first taking place and Delhi would be next. आई थिंक सीएम साहब ने कहा कि भाई अगर लोग सोचते हैं कि वो ईमानदार हैं और करप्शन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर बढ़िया तरीके से उनको जिताएं। दिल्ली की जनता के लिए आगे किस तरह से काम होगा सर? जनता के लिए काम पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी थी। जो इनके तंग करने पे ना टूटे ना झुके, इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस्तीफा दें, परंतु जब कोर्ट ने इनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद ये जनता की अदालत में जा रहे हैं। Now, even when it comes to Aam Aadmi Party's national ally, the Congress is not buying all of these praises or the explanation that has now been given. Even when it comes to the son of former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit, Sandeep Dikshit has said that there is no link between morality and Arvind Kejriwal, while the BJP meanwhile has dismissed the announcement as a mere gimmick. यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके
डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार एक दिन चले, एक हफ्ते चले, एक महीने चले चुनाव तक, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। All right, let's open this up. Abhishek Sudhir ji is with us, political analyst. Sir, good morning to you. संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे, political analyst. संजीव जी, आज ज्यादातर सवाल आपके पास ही आएंगे क्योंकि बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी आखिरकार बाकी है कि ये जो पैतरा जिसे कहा जाए या एक पॉलिटिकल मूव कहा जाए, ये आखिरकार इस वक्त क्यों सोचा अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा अपने पद से? अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको डिकोड करते रहे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है, लेकिन सच बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चिल्ला रही थी कि इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल निकले, इस्तीफा दिए। पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिए? तो पहले उनको पता था कि यदि हम जेल में जाते समय इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार एक बात मैं कहता चला आया हूँ कि वो पारंपरिक राजनीति से अलग हट के वो राजनीति करते हैं। वो उनकी सोच समझ और राजनीति करने की शैली अलग है। दिल्ली की जनता के लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं। यदि सिर्फ आरोप लगा देने भर से और जेल जाने के बाद से ही यदि इस्तीफा दे देने की परंपरा यदि वो कायम रखते तो शायद वो इस्तीफा दे चुके होते। फिर जिस तरह से अन्य स्टेटों में मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद में दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया, उहापोह की स्थिति रही, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की कोशिश की, सफलता भी मिली उसमें। इस चीज को वो बिल्कुल भांप चुके थे पहले से, इसलिए उन्होंने इस राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग रखा और नई तरह की राजनीति। आज वो बाहर निकल गए, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता के बीच में छवि खराब करने की कोशिश की गई है, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। अब वो जाएंगे जनता के बीच में, आए भारतीय जनता पार्टी भी आए, अरविंद केजरीवाल भी जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे 48 घंटे की जो मोहलत मांगी गई है कि तब जाकर फिर तय होगा कि आखिरकार कौन आगे उन्हें सक्सीड करेगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। आखिरकार अगर दिल्ली चुनाव के बारे में बात की जाए तो अभिषेक जी, यहां पर अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से रीजनिंग ये आ रही है, सर, द रीजन दैट दे आर गिविंग फॉर द 48-hour time being given, that saying that yesterday when he made the announcement it was a Sunday, today there is also a holiday, it is Eid the occasion, and far as 17th is concerned, which is tomorrow, he will officially be stepping down. Oh, okay. I suppose what is he observing Eid today? I don't really understand the rationale. But you know what? These are the desperate actions of a desperate man. You see, Arvind Kejriwal is one of the most insecure politicians in India. So it's a shocker that Mr. Kejriwal is now going to take the risk of creating a parallel power center within the Aam Aadmi Party. You saw what happened in Jharkhand with Champai Soren. You saw what happened with Jitendra Ram Manjhi in Bihar. This has happened in Karnataka as well multiple times. Within the party, when there is a new chief ministerial face, you create a new power center. So Mr. Kejriwal needs 2 days to figure out whether he wants to make his wife Sunita Kejriwal a puppet chief minister, or will he give someone like Atishi the responsibility of chief minister. Mr. Kejriwal, let me tell you, is extremely wily. He's extremely smart and quite unscrupulous as well. So he knows that if he gives Atishi the chief minister's chair, he's creating a new power center. So this is why he needs 2 days to figure everything out. As Mr. Sudhanshu Trivedi, BJP spokesperson, said in the clip that you just ran, if this man was truly genuine and wanted to resign, he should dissolve the assembly and call for early elections. मैं ये सवाल संजीव जी से भी पूछ लेती हूँ
क्योंकि दोनों सर आपको बीजेपी और कांग्रेस तो कम से कम आपकी एलाई है नेशनल फ्रंट पे, वो भी वहां पर संदीप दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि जब गिरफ्तारी हुई तो हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था, और यही क्यों है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल दी गई, ये कहते हुए कि वो अपने दफ्तर तक नहीं जा सकते, वो ऑफिशियल्स फाइल के ऊपर नहीं सिग्नेचर कर सकते, क्योंकि जब हेमंत सोरेन को जब बेल मिली तो वो वापस चीफ मिनिस्टर के पद पे आ गए। दो बातें, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने के बाद में भी कोई ऐसा काम नहीं था जो रुक जाए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं था जिस पे वो साइन करेंगे फिर काम होगा या आगे मंत्रालय उसको संभालेगा। सारे लोग अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे थे। वैसे आज भी वो चाहते तो करते। अब क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी इस्तीफा देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी इस्तीफा देने के लिए, इन्होंने घोषणा कर दी इस्तीफा देने के लिए। अब पेट में दर्द ये है कि पहले क्यों नहीं दिया और अब क्यों दे रहे हैं? भाई साहब, राजनीति आप ही करते हैं। कर लेते, अगर जल्द चुनाव चाहते कि हो दिल्ली में, असेंबली क्यों नहीं डिसॉल्व कर देते? 6 महीने के अंदर सरकार के हाथ में है कि वो चुनाव आयोग से बात करे, केंद्रीय सरकार, और जब चाहे तब चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर में वो चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब कराइए चुनाव, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए अभिषेक जी, if the Aam Aadmi Party says they are ready, if they are now banking on sympathy votes, because that did not work for them, did it? When Arvind Kejriwal was out for few days for election campaign just before the Lok Sabha elections, कम से कम दिल्ली में तो सातों के सातों सीट्स बीजेपी के खाते में गई। सर अभिषेक जी, Exactly. See, the Delhi voter is smart. He knows that Arvind Kejriwal cannot be trusted to run the country. So they have never ever in the history of the Aam Aadmi Party given him one Lok Sabha seat. That is a stunning fact that Arvind Kejriwal has never won a single Lok Sabha seat as convener of the Aam Aadmi Party. So the people know that this man, this deceitful man, cannot be trusted to run the country. The only reason he's won the mandate in Delhi is because of his freebies. What I would say is the BJP needs to project a strong chief ministerial face, have a solid manifesto, and assure the people of Delhi that all the welfare that Arvind Kejriwal is promising them, to use a kind word, will continue. That is the only reason Arvind Kejriwal gets elected at the state level in Delhi. People know he cannot be trusted to run the country. They know what he has done in Punjab. Look at Punjab. If not Arvind Kejriwal, then who? संजीव जी, क्या आपके पास कोई अंदर की खबर है? सर, क्या हमें आप बता सकते हैं कि आखिरकार अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो क्या लालू राबड़ी जो मॉडल है बिहार का वो अपनाया जाएगा दिल्ली में, या आतिशी जी होंगी, कौन होंगी? सर, कोई आपके पास खबर है? सर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कयास लगाते रहे, लेकिन सच बात यही है कि विधायक दल की एक बैठक होती है, उस बैठक में ये डिसीजन लिया जाता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। सब सर्वसम्मति से उसका चुनाव होता है। और यदि बने ही सुनीता केजरीवाल ही बने तो क्या इसके लिए 48 घंटे की जरूरत है? मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पर यह बात कहता हूँ कि यदि सुनीता केजरीवाल को ही बना देना था तो इससे पहले भी बना सकते थे, वो इसके बाद भी बना सकते थे। लेकिन सर वो कोई पद तो संभालती नहीं, ना पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, ना उन्होंने चुनाव लड़े हैं। नहीं, अमिता मेरी बात, चूंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी और मनीष सिसोदिया ने निकलते जेल से सबसे पहले ये कहा था कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, सुनीता केजरीवाल एक्टिव है, चूंकि उनकी वो पत्नी है, धर्मपत्नी है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा मॉडल पहले एक प्रदेश में अपनाया गया है। अभिषेक जी, लास्ट कमेंट टू यू सर, इज दिस द हाई कमांड कल्चर दैट सीम्स टू हैव टेकन ऑन द आम आदमी पार्टी नाउ? सर, there is no high command in Aam Aadmi Party. There is one man command. Look at how this smart man has himself ruled out Manish Sisodia. Manish Sisodia is the natural successor of Arvind Kejriwal. So you see, he knows if he makes Sisodia CM, his seat is under threat. Again, I repeat, Arvind Kejriwal is so insecure that he's asked not for 2 days, but he's asked for 2 sleepless nights. What will be keeping Arvind Kejriwal up is, who do I make CM? If I make Sunita, I look like Lalu 2.0. If I make Atishi will be a threat to me in the future. These are the desperate actions of a desperate man. For the first time. संजीव जी, लास्ट 10 सेकंड सर, क्या शीश महल के अपना घर खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल कल अगर वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं? सर 5 सेकंड। निश्चित तौर पे वो अरविंद केजरीवाल का, अभी तक जो लोग ये बात कहते चले आए कि उसमें इतने पैसे खर्च कर दिए गए, अरविंद केजरीवाल का वो निजी आवास नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसमें रहेगा, और अरविंद केजरीवाल यदि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो 15 दिनों के अंदर 48 घंटे में से करीबन 24 घंटे अभी पूरे होने वाले हैं। अगले 24 घंटे का अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार जो अभी अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, क्या वो वही सही मायने में करते हैं? विल ही एक्चुअली resign and step down, and who exactly would be his successor remains to be seen. Thank you very much, Abhishek ji, Sanjeev ji, thank you very much for joining us here on the Morning News.